Hello all. I welcome you all on behalf of Vidigya, your best pal for CLAT preparations. Here at Vidigya, we have come up with this unique initiative wherein we'll be doing a 360-degree analysis of those topics which are relevant and important as far as CLAT and other law entrance test exams 2021 is concerned. So today our topic for the discussion is Jordan crisis. So it was recently in news in the month of April 2021. So that's why we had taken this particular topic into account. And if we have seen, or if you guys have seen my previous session wherein I talked about the importance of those topics which holds an impact on international relations. Like if we see the matrix of CLAT 2020 actual exam paper, therein 4 out of 7 passages were those which had a direct or an indirect relation or which was talking about international use, right? So this topic is also of that nature only. So that's why we have taken this particular topic into account. I'll quickly, get you through the flow of content that how we are going to proceed with this particular session. So first of all, we'll see why this particular thing was in news recently, because already told you this was in news in the month of April 2021. Then we'll have a look at the crisis, what has happened, right? Crisis and the coup, and the role of Saudi Arabia. Then we'll have a look at about Jordan, its importance, its demography as well. Then we'll have a look at what's the say of United States on this particular issue. So, and after that, we'll have a quick quiz of 5 questions as well. So, without any further ado, we are ready to begin. A quote: either you run the day or the day runs you. So फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू सी अबाउट जॉर्डन. जॉर्डन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि जॉर्डन मिडल ईस्ट कंट्री है और विच शेयर्स बाउंड्रीज विद इजराइल इन द वेस्ट एंड सीरिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जॉर्डन, and it also shares boundaries with Iraq and Saudi Arabia in the east, right? So it is a prominent country which which is not so populous. Its population is around 10 million, that is 1 crore. So now this was just about Jordan. थोड़ा बहुत अपन ने समझा जॉर्डन के बारे में, right? Now we'll see crisis कि भाई वहां इशू क्या हो गया. So what has happened? The royal household in Jordan has recently seen intense drama. क्या ड्रामा था? Wherein the king's popular half brother I will tell you half brother कौन होता है, and former crown prince, पहले जो क्राउन प्रिंस थे, फॉर्मर क्राउन प्रिंस जो 1999 से 2004 तक क्राउन प्रिंस थे, जिनका नाम था प्रिंस हमजा, उनको क्या कर लिया गया? हाउस अरेस्ट कर लिया गया, डिफैक्टो हाउस अरेस्ट. और बाय हुम? बाय हिज ओन ब्रदर, दैट इज हाफ ब्रदर, जिसका नाम क्या है? हुज नेम इज, हु इज प्रेजेंटली द किंग ऑफ जॉर्डन, दैट इज किंग अब्दुल्ला सेकंड. तो समझिए बात को, क्या हुआ? प्रिंस हमजा को, जो कि 1999 से 2004 तक जॉर्डन के क्राउन प्रिंस थे, उनको क्या कर लिया गया? अभी 2021 अप्रैल में हाउस अरेस्ट कर लिया गया बाय हिज ओन ब्रदर, हु इज करेंटली द किंग ऑफ जॉर्डन, हुज नेम इज किंग अब्दुल्ला सेकंड. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते उससे और समझ आएगा पूरी फैमिली चार्ट. तो उसमें ये देखिए, अल हुसैन जो वहां के किंग थे, हु डाइड इन 1999 ड्यू टू कैंसर. तो उनके जो 4 बीवियां थी, उसमें जो किंग अब्दुल्ला सेकंड है, जो अभी हु इज करेंटली द किंग ऑफ जॉर्डन, वो सेकंड उनकी जो वाइफ है, उनके बेटे थे. ये दिस प्रिंसेस मुना, उनके बेटे थे किंग अब्दुल्ला सेकंड, हु इज करेंटली रूलिंग द जॉर्डन. बट अगर मैं उनकी बात करता हूं, जो फॉर्मर प्रिंस जो हमजा के मैंने आपको बताया था, वो उनकी मदर का नाम था क्वीन नूर. और कौन थी वो? 4th वाइफ ऑफ अल हुसैन फर्स्ट, जो क्या थे वहां पे? किंग थे टिल 1999 ऑफ जॉर्डन. तो उनके बेटे थे प्रिंस हमजा, जो कि फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे 2004 तक. आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा. हाफ ब्रदर का मतलब होता है कि जिसका एक पेरेंट सिमिलर है, दैट इज दोनों के केस में अगर किंग अब्दुल्ला सेकंड की बात करता हूं या प्रिंस हमजा की बात करता हूं, तो दोनों के फादर सेम है बट मदर्स अलग अलग है. सो दैट्स व्हाई यहां पे वर्ड कॉइन हुआ है, दैट इज हाफ ब्रदर. ठीक है, आगे इन नेक्स्ट स्लाइड्स विल सी what's the crisis. That's what had led to King Abdullah II, who's currently the king there, कि उन्होंने अपने खुद के भाई को, हाफ ब्रदर को ही डिफैक्टो हाउस अरेस्ट में डाल दिया, राइट? तो ऐसे क्या क्राइसिस आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई उनकी? दिस विल सी. So Jordan's popular former crown prince Hamza, that I had already told you,
was placed under de facto house arrest by his own brother, that is King Abdullah II. और क्या रीजन था? बिकॉज accused of undermining national security after attending tribal meetings. तो क्या हुआ, उनके द्वारा किंग अब्दुल्ला सेकंड का ये मानना था कि उनके जो हाफ ब्रदर है, जो कि पहले क्राउन प्रिंस थे, प्रिंस हमजा, उन्होंने कुछ ट्राइबल मीटिंग्स करी और वहां पे क्या किया, उनकी सरकार मतलब उनके भाई की सरकार मतलब किंग अब्दुल्ला सेकंड जो करंटली वहां रूल कर रहे हैं उनको अपोज किया. ठीक है. हिज हाफ ब्रदर वाज ओपनली क्रिटिसाइज, अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, उनके बारे में बताया कि द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द जॉर्डन इज नॉट गुड और अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नो विच इज नॉट राइट, वो सब चीजें वहां हो रही. तो कहीं ना कहीं उस ट्राइबल मीटिंग्स जो वहां पे वो जो वहां पे ज्वाइन करी उन्होंने, अटेंड करी, उसमें कहीं ना कहीं ओपनली क्रिटिसाइज किया किनको, किंग जॉर्डन, जो सॉरी द किंग ऑफ द जॉर्डन, दैट इज क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला सेकंड. और एक चीज और दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किंग अब्दुल्ला सेकंड जो 1999 में उन्होंने वहां से लेके 2004 तक उनके जो हाफ ब्रदर दैट इज प्रिंस हमजा, उनको क्या बनाया वहां का क्राउन प्रिंस, बट 2004 में उनसे वो पदवी वहां से वापस ले ली गई. आई होप यहां तक क्लियर होगा. उसके बाद अपन देखते हैं प्रिंस हमजा देन रिलीज 2 वीडियोस जो वहां के फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे, कॉलिंग इज कंट्रीज गवर्नमेंट करप्ट, कि जॉर्डन की जो सरकार है, मतलब उनके भाई के ऊपर ही उन्होंने एक एलिगेशन लगा दिया कि उनकी जो भाई की जो सरकार है वो क्या है, करप्ट है एंड इनकॉम्पिटेंट, असमर्थ है, एंड सेइंग दैट पीपल वेर अफ्रेड टू स्पीक अबाउट फॉर फियर ऑफ हरेसमेंट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज. मतलब लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आवाज उठाए, लेकिन वहां जो माहौल है वो दहशत का माहौल है, वो वहां काफी करप्शन हो रहा है और सरकार कहीं ना कहीं जो अपने वादे थे, और कहीं ना कहीं सरकार क्या है, इनकॉम्पिटेंट है. कहां की, जॉर्डन की. क्लियर है. अब इसमें यहां पे एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड कि सऊदी अरेबिया का क्या रोल आता है. सऊदी अरेबिया का ये रोल आता है कि कहीं ना कहीं किंग अब्दुल्ला सेकंड का ये मानना था कि इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन इंटरवेंशन है, और इन लोगों का आपस में मिलके ऐसा मानना है कि ये लोग यहाँ की सरकार हटाना चाहते हैं या तख्ता पलट करना चाहते हैं, जिसको अपन कू कहते हैं, जो अपने दैट वी हैड ऑलरेडी सीन द म्यांमार क्राइसिस एज वेल, उसका भी अपन ने वीडियो बना रखा है, तो आप उसके लिए उसको रेफर कर सकते हैं कि कू के बारे में और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि वहां पे मिलिट्री ने पावर एक्वायर कर ली फ्रॉम डेमोक्रेसी. ऑन्ग सोंग सू की वाला अपन ने पूरा स्टडी किया था. ठीक है. तो यहां पर सऊदी अरेबिया का रोल आता है, बट सऊदी अरेबिया के ऊपर एक तरह से कंटेंशन आ गया या उनके ऊपर एलिगेशन आ गया, और कहीं ना कहीं किंग अब्दुल्ला सेकंड ने इनडायरेक्टली बता दिया कि जो पड़ोसी देश उनका, जैसा मैंने आपको बताया ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है विद जॉर्डन, दैट इज सऊदी अरेबिया, तो वो कहीं ना कहीं इसमें इंटरवीन कर रहा है. उनका कहीं ना कहीं ऐसा मानना था कि सऊदी अरेबिया और ये प्रिंस हमजा वगैरह ये सब मिलके क्या करना चाहते हैं, यहाँ सरकार की तख्ता पलट दैट इज कू करना चाहते हैं. क्लियर है. क्राइसिस और कू के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं. फिर क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे प्रिंस फैजल बिन फरहान, वो कहां गए, जॉर्डन गए. जॉर्डन में उनकी जो कैपिटल सिटी है अमान, वहां गए डेलीगेशन के साथ, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया टू एक्सप्रेस कंप्लीट सॉलिडेरिटी विद जॉर्डन किंग्स अब्दुल्ला सेकंड एंड हिज गवर्नमेंट, कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है. सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है जो उन्होंने अमान ने जाके दिया, जो कि जॉर्डन की कैपिटल है, और उन्होंने ऐसा कहा कि वी एक्सप्रेस कंप्लीट सॉलिडेरिटी विद जॉर्डन किंग, हम उनके साथ है. किसके साथ, किंग अब्दुल्ला सेकंड एंड हिज गवर्नमेंट, कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि यहां पर हम खू करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं सरकार गिराना चाहते हैं, और हम वी आर इन फुल सपोर्ट विद द करंट किंग दैट इज अब्दुल्ला सेकंड. क्लियर है. आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो रही होगी. क्या मानना था, दिस दे सेड वाज अ सिंगल यूनिफाइड सऊदी पोजीशन एंड एनी एलिगेशन दैट सऊदी अरेबिया वाज इन्वॉल्वड इन ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इट्स मच स्मॉलर नेबर वाज फार फेच्ड नॉनसेंस. मतलब सऊदी अरेबिया का मानना था कि जो कहीं ना कहीं किंग अब्दुल्ला सेकंड या उनकी सरकार ने जो एलिगेशन लगाया, पड़ोसी देश बोलने के साथ कहीं ना कहीं ऐसा बोला है कि सऊदी अरेबिया का इनडायरेक्टली उनको कॉर्नर किया है, कि या उनको उनकी तरफ इंडिकेशन दिया है, तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट, और इनका कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी ऐसा कोई रोल नहीं है कि, और उन्होंने तो एक ऐसा वर्ड दिया दैट इज फार फेच्ड नॉनसेंस, तो मतलब कहीं उनका था ही नहीं. ये दिस वाज द टेक ऑफ सऊदी अरेबिया. क्लियर है. उसके बाद जॉर्डन गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स हैव स्टेटेड दैट देयर हैड बीन एन अटेम्प्ट कू टू डिस्टेबलाइज द कंट्री. दैट्स व्हाट वी हैड ऑलरेडी सीन की कू के बारे में अभी अपन ने समझा था कि कहीं ना कहीं जॉर्डन की सरकार को भी ऐसा था कि यहाँ पर कू करने की इनकी इच्छा है, या इनकी मंशा है, कहीं ना कहीं ये तख्ता पलट करना चाहते कहाँ पे, जॉर्डन में.
और द इवेंट्स हैव thus put a spotlight on Jordan's unique position as one of the most stable countries in the Arab world. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं कि जॉर्डन जो है वो जो रिफ्यूजीज है या कहीं ना कहीं इसराइल पैलेस्टाइन डील जिसका जो अपन ने ऑलरेडी सेशंस में डिस्कस कर रखा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन, जॉर्डन। दो इन टर्म्स ऑफ एरिया इतना बड़ा नहीं है इफ यू कंपेयर विद द नेबर इट्स नेबरिंग कंट्रीज, एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इतना बड़ा नहीं है, बट कहीं ना कहीं काफी स्टेबल कंट्री है, काफी पीसफुल कंट्री है। मतलब जो इफ आई से द इनकम ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स देयर, वो भी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी एक स्टेबल कंट्री है, शांत कंट्री है, किसी भी तरह का जो कंट्रोवर्सी है उसमें नहीं आता है। अगर अपन बात करें जो उसके पड़ोसी देश है इसराइल, सऊदी अरेबिया, सीरिया, जो कहीं ना कुछ कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते ही है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब अपन समझते हैं जॉर्डन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये अपन ने समझ लिया काफी शांत देश है, काफी अच्छा देश है एज फार एज मिडल ईस्ट इज कंसर्न। जॉर्डन विच दिस ईयर सेलिब्रेट्स 100 ईयर्स सिंस इज क्रिएशन, या जब से उसका इंसेप्शन हुआ 100 साल अभी सेलिब्रेट करने वाला है, और उसको रिमेन स्टेबल मोस्ट स्टेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट इज प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, काफी दूर रहता है। For its allies in the West, in the Gulf, Jordan is a strategic partner which can be relied upon for furthering political objectives in the region, which includes war-torn Syria and Iraq as well as conflict-prone Israel and Palestine. जो अपन ने इसराइल पैलेस्टाइन डील जो ऑलरेडी अपन ने सेशंस में कवर कर रखी है, उसमें अपन ने समझा था कि उसमें भी कहीं ना कहीं जॉर्डन का रोल है इसराइल पैलेस्टाइन डील में। भले इसकी पॉपुलेशन कम है, इन टर्म्स ऑफ एरिया कम है, बट इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस कम नहीं है। I'm talking about Jordan, right? And the support of Jordanian or Jordan intelligence has proven critically important in the fight against terrorism, right? जैसे CIA हो गया, मोसाद हो गया ऑफ इजराइल, तो इन द सेम वे जॉर्डन का जो इंटेलिजेंस है दैट इज ऑल्सो वेरी एक्टिव एंड वेरी प्रोमिनेंट एंड विच इज प्रूवन क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अपन ने जॉर्डन की इंपॉर्टेंस समझी, काफी शांत देश, काफी स्टेबल कंट्री, आसपास जो उसके क्या कह सकते हैं जो लड़ाई झगड़े इसराइल पैलेस्टाइन डील वगैरह वो सब जो है उसमें भी इसका रोल है, राइट, कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। और अपन ने इसकी एजेंसी के बारे में भी देखा कि कहीं ना कहीं वो क्रिटिकली एक इंपॉर्टेंट है एज फार एज काउंटर और कॉम्बेट द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन की डेमोग्राफी की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मिडल ईस्ट कंट्री है, बॉर्डर शेयर करता है इसराइल के साथ, सीरिया के साथ, इराक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, राइट। द कंट्री पॉपुलेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 करोड़ 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, और हेवन फॉर रिफ्यूजीज, ऐसा इससे आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो आसपास में अगर किसी भी देश को बहुत ज्यादा समस्या या पहले काफी लड़ाई झगड़े वॉर वाली सिचुएशन में उनके पास एक ऑप्शन था कि यस वी कैन गो टू जॉर्डन, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि उनकी काफी पॉपुलेशन जो है दैट कंप्राइजेज ऑफ रिफ्यूजीज ओनली, ऑफ हुम जॉर्डन। और जॉर्डन रिसीव्ड वेव्स ऑफ रिफ्यूजीज, जैसे दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इजराइल पैलेस्टाइन डील वाली बात। इट हैज आल्सो वेलकम रिफ्यूजीज आफ्टर द 2003 यूएस इन्वेजन ऑफ इराक एंड करंटली होस्ट ओवर 10 लाख फ्रॉम सीरिया। दिस वी कैन सी कि 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं बात करता हूँ 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 10 लाख फ्रॉम सीरिया, जो 2003 यूएस इराक की जो फाइट हुई थी उसमें, तो 1/10 पॉपुलेशन तो सीरिया वाले ही है वहां पे, राइट। तो रिफ्यूजीज के लिए जो वर्ड कहा गया है हेवन फॉर रिफ्यूजीज, बिल्कुल सही, या बिल्कुल मतलब वी कैन से रेजोनेट करता है विद जॉर्डन। जॉर्डन इज ऑल्सो कंसिडर इंपॉर्टेंट टू एनी फ्यूचर पीस डील बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन, जो अपन ने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। जॉर्डन की अगर वर्ल्ड रिलेशंस की बात करते हैं, जॉर्डन ने काफी अच्छे रिलेशन इन द वेस्ट एंड इन द गल्फ एज वेल, जो अपन ने डिस्कस किया है। जॉर्डन इज मेंटेन क्लोज रिलेशन विद द यूएस एंड द फेलो सुन्नी मुस्लिम पावर्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूएई व्हिच टुगेदर स्टैंड अगेंस्ट शिया ईरान। अपन जानते ही ईरान के खिलाफ यूएस का स्टैंड हमेशा से काफी मतलब दोनों के बीच में टसल कंटिन्यूअस तरीके से चालू रहती है यूएस और ईरान के बीच में। और ईरान जो है प्रीडोमिनेंटली क्या है, शिया है, शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है। बट जो जॉर्डन है यहाँ पे सुन्नी डोमिनेटेड है। इन द सेम वे सऊदी अरेबिया यूएई की बात करें, वो भी सुन्नी डोमिनेटेड है, तो वो भी एक तरह से एक इनका कॉन्सोर्शियम जैसा हो जाता है इन कंट्रीज का, विच काउंटर्स शिया ईरान, ठीक है। इट ऑल्सो इज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल एंड द टू कंट्रीज हैव बीन बाउंड बाय पीस ट्रीटी सिंस 1994। देखिए 1994 के पहले इजराइल के साथ जॉर्डन के इतने अच्छे रिलेशन नहीं हुआ करते थे, और काफी मतलब जैसा
टसल इंडिया और पाकिस्तान जो अपने नेबरिंग देश है उनके बीच में चलता था, इन द सेम वे इसराइल और जॉर्डन के भी इसी तरीके से रिलेशन थे। बट कहीं ना कहीं 1994 में इन कंट्रीज ने क्या किया, आपस में पीस डील साइन करी, और कहीं ना कहीं उसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन में काफी सुधार आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस वी आर टॉक्ड अबाउट द जॉर्डन्स वर्ल्ड्स रिलेशन। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट द जॉर्डन क्राइसिस। आई होप यहां तक आपको क्राइसिस समझ में आई होगी कि क्या क्राइसिस थी। किंग अब्दुल्ला सेकंड ने जो या जो फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे हमजा, उनको डिफैक्टो हाउस अरेस्ट कर दिया। उनका ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन कंट्री, पड़ोसी देश के द्वारा, दैट इज देवर डिनोटिंग सऊदी अरेबिया, वो मिलके क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कूल आना चाह रहे हैं या तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। तो उनको ऐसा भय था, उनको ऐसा डर था, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जॉर्डन में उनके भाई को क्या कर दिया, डिफैक्टो हाउस अरेस्ट कर दिया। फिर अपन ने जॉर्डन के बारे में देखा कि जॉर्डन की इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड रिलेशन, और कितनी पॉपुलेशन है, क्या वहां की एजेंसी क्या क्या करती है। तो पूरा अपन ने जॉर्डन के बारे में इतिहास थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का समझ लिया, सो दैट अगर कोई प्लेट में इससे मुताबिक क्वेश्चन आता है और जो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या जॉर्डन की हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछता है, सो दैट वी विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है। पोस्ट क्राइसिस बोथ सऊदी अरेबिया एंड यूएई एक्सप्रेस फुल सपोर्ट फॉर किंग अब्दुल्ला सेकंड। जो अपने सऊदी अरेबिया का स्टैंड तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर अमान में आके उन्होंने बता दिया था पूरा एक स्टेटमेंट कि वी स्टैंड विद किंग अब्दुल्ला सेकंड इन कंप्लीट सॉलिडेरिटी। और उन्होंने ये जो पूरे बातचीत चल रही थी कि ये सरकार के तख्ता पलट, तो उसको एक कंप्लीट नॉनसेंस करार दिया था। यूएस ने भी फुल सपोर्ट किया किसका, किंग अब्दुल्ला सेकंड जो यहाँ पर वहां पर अभी रूल कर रहे हैं। की पार्टनर यूएस ने भी, और यूएई सऊदी अरेबिया का भी मैंने टेक आपको बता ही दिया। टू ड्राइव होम द पॉइंट, सऊदी अरेबिया सेंट इज फॉरेन मिनिस्टर, जो अपन ने भी देखा, प्रिंस फैजल बिन फरहान, जिनको वहां भेजा गया, उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट दिया विद हिज whole delegation. And Saudi and the UAE have little to gain by destabilizing Jordan, a country that has long served as an dependable ally. तो ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी उनका ऐसी मंशा नहीं है कि वो डीस्टेबलाइज या जॉर्डन में कूल लाना चाहते हैं या तख्ता पलट करना चाहते हैं। और एक अच्छा देश है, और विच इज प्रोवाइडिंग गुड सॉलिडेरिटी, और कहीं ना कहीं गल्फ की जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, उसमें एक स्ट्रेटेजिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉर्डन। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। इससे अपन ने पूरी चीज समझ ली, हाफ ब्रदर क्यों कहा जाता है, जॉर्डन के बारे में अपन ने समझ लिया, क्राइसिस क्या थी, क्यों हाउस अरेस्ट किया गया, और सब चीज ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू विल जस्ट मूव अहेड टू द क्विज। वी हैव ए क्विज ऑफ 5 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, जॉर्डन प्रिंस फॉर्मर Jordan's popular former crown prince Hamza was placed under de facto house arrest and accused of undermining national security after attending tribal meetings where dash his half brother was openly criticized. Which of the following has been replaced by one? So the correct answer is B, that is King Abdullah II, because Al Hussein first कौन है? Al Hussein first तो वहां के फॉर्मर किंग जो 1999 तक वहां पर किंग थे, मतलब इनके पिताजी वी कैन से। और किंग अब्दुल्ला सेकंड जो इसका आंसर है, जो भी रूल कर रहे हैं फ्रॉम सिंस 1999 अभी तक। एंड प्रिंस फैजल बिन फरहान वो तो फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनका तो कहीं रोल ही नहीं है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Now we'll move to question number 2. In which of the following year Jordan had signed a peace deal with Israel? That we had recently discussed, I think 3 to 4 slides before. So that was 1994. So the correct answer is option D. Question number 3. Which of the following statement is incorrect? First, Prince Hamza was stripped off from his title of Crown Prince in 2004. बिल्कुल सही है, 1999 में क्राउन प्रिंस बने थे प्रिंस हमजा, और 2004 में उनसे वो टाइटल उनसे वापस ले लिया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इनकरेक्ट वन। इसका हमेशा अपन को ध्यान रखना, इवन इन एग्जाम्स एज वेल। सेकंड, अल हुसैन वन डाइड इन 1999 ड्यू टू कैंसर। बिल्कुल सही है। प्रिंस हमजा गॉट द टाइटल ऑफ क्राउन प्रिंस फ्रॉम किंग अब्दुल्ला सेकंड। ये भी बिल्कुल सही है। सो नन ऑफ द ऑप्शंस क्या है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Jordanian government statement have stated that there had been an attempt coup to destabilize the country, mentioning unnamed foreign entities involved in the plot. Which of the following country has been referred in here? So very easy question. The correct answer is D, that is Saudi Arabia. Now we'll move to the last question. Question number 5. Which of the following statement is incorrect with respect to Jordan? यहाँ पे the question is asking of the incorrect one again.
ओके, सो द फर्स्ट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन इज अमान, बिल्कुल सही है, अपन ने डिस्कस किया था, फॉरेन मिनिस्टर आए थे विद हिज डेलीगेशन अमाम। जॉर्डन फॉलोज ए यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम इन द कंट्री, ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में अपन ने पहले डिस्कस नहीं किया, बट आप समझिए जॉर्डन में किंग भी है अभी, बट इवन वहां पर अभी प्राइम मिनिस्टर भी, तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, मोनार्क और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी है वहां पर, तो इसीलिए वहां पर यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है, कहां पर, जॉर्डन में, जो वहां पर रूल कर रहा है। सो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, जॉर्डन डज नॉट हैव ए प्राइम मिनिस्टर, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, जॉर्डन के पास प्राइम मिनिस्टर है, मतलब जॉर्डन करेंटली हैव अ प्राइम मिनिस्टर, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, और डी तो ऑटोमेटिकली नेगेट हो जाता है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी। So with this, I think we have got a good comprehensive overview of this particular topic, that is Jordan crisis, which was recently in news in the month of April 2021, and we'll see कि आने वाले समय में और क्या डिसीजंस आते हैं, कब इनको वहां से रिलीज कर दिया जाता है या क्या, और यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएस का कुछ टेक आता है कि प्रिंस जो हम जाए उनके बारे में क्या होना चाहिए, या कू की सिचुएशन थी, तो इन द टाइम्स टू कम आई थिंक विल बी एबल टू हैव ए इवन मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट अभी तक पुरानी स्टोरी और कहीं ना कहीं अभी तक जो वो अपन को अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। आई थिंक विद दिस वी आर गुड टू गो, एंड another quote, that is, when you can't change the direction of the wind, adjust your sails. This is self explanatory, and I don't want to just explain this, but when you can't change the direction of the wind, adjust your sails. So exam is on the line, and the time is of essence now, my old say, so it's high time we should start studying more and put more efforts as far as examination, and with this I think we are good to go. Be positive, stay logical, and stay ahead with Vidya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more content with respect to CLAT and other law entrance exams, you can visit the description which has been provided. You can visit the URL which has been provided in the description in the below section. That's all from my side. Thanks for watching.